All right. So if a light pass through certain crystals, say calcite, it divide into two components, ordinary ray and extraordinary ray. ठीक है जी. So we have calculated the path difference as well in between the two. So path difference was equal to C into delta T. So C over T by velocity of ordinary ray minus T by velocity of extraordinary ray. So we have completed up to this point. So next is, if this path difference, or we can say thickness, or begin with the path difference, if this is equal to lambda by 4 or lambda by 2 or lambda. So there are three cases. So we'll discuss. If this path difference is lambda by 4, then the effect obtained is called quarter, because it is 1/4 quarter wave plate. If path difference is lambda by 2, it is half wave plate. And if it is lambda, it is full wave plate. Okay? So sometimes these crystals, calcite crystals, they are written in the form of retardation plates, or you can also say phase retardation plates of certain thickness T. Okay? So these phase retardation plates, they split unpolarized light. So here we have unpolarized light, and here we have plane polarized light, ordinary and extraordinary. So they split unpolarized light into two components, ordinary ray and extraordinary ray. The split component travel with different speeds. Okay, because refractive index of crystal for ordinary and extraordinary ray are different, because this ordinary ray feels refractive index mu O and this extraordinary feels mu E. Okay. This introduces path difference between the two split components. So हमारे पास दो component है. First one is ordinary ray. Second one is extraordinary ray. So these phase retardation plates, they split unpolarized light into two components, which has certain phase difference. So if the path difference is lambda by 4, तो phase difference कितना होगा बच्चे? If path difference is lambda by 4, corresponding phase between ordinary extraordinary rays, ये आप calculate कर सकते हो easily. Lambda by 2. So pi by 2. Pi by 2. ठीक है ना? Similarly, if phase difference, path difference is lambda by 2, then ये pi हो जाएगा, corresponding phase difference. ठीक है? So it means mu ordinary and extraordinary ray, they are maintaining certain phase difference when they are passing through certain phase retardation plates, such that their thickness can be lambda by 4, lambda by 2 and lambda. ठीक है? So यहां तक ही है बच्चे आपके सिलेबस में as far as phase retardation plates are concerned. इसके आगे भी आप जहां चाहो तो जा सकते हो कि lambda by 4 अगर आप इंट्रोड्यूस करो तो प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी, lambda by 2 इंट्रोड्यूस करो तो सर्कुलरली पोलराइज लाइट मिलेगी, एंड सो ऑन. ठीक है? So but for your syllabus, this information is sufficient. Now again the question arises, we have just discussed about the double refraction. ये होती क्या? Then प्लेट वाला एक बार फिर बता दी, lambda by 4, lambda by 2 lambda का. मुझे अगर आपकी थिकनेस जो है, ये जो प्लेट है, जैसे ऑर्डिनरी अनपोलराइज्ड लाइट है, इसके आगे मैंने कोई प्लेट रख दी जिसकी थिकनेस, फेज रिटार्डेशन प्लेट जिसकी थिकनेस है ये, ठीक है? अगर ये थिकनेस लैम्डा बाय 4 के बराबर होगी, तो यहां जो मेरे पास दो कंपोनेंट आएंगे, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे और ये ऑर्डिनरी रे, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होगा
पाई बाय 2। ठीक है जी। अगर ये थिकनेस में इंक्रीज करता हूं, ये लैम्डा बाय 2 कर देता हूं, तो कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस हो जाएगा पाई। ठीक है, इन जनरल तो आप साइन वेव की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो ना वेव को। सो एक साइन वेव दूसरी वेव से कितना फेज डिफरेंस मेंटेन कर रही है, ये डिपेंड करता है। क्योंकि अब ये फेज डिफरेंस आ क्यों रहा है, क्योंकि दिस extraordinary ray is feeling different refractive index as compared to this one. Material same ही है आपके पास, say calcite. So that is why they are also known as phase retardation plate. ये calcite crystal की अगर आपने एक plates sheets की form में बनाया, so they are called phase retardation. So they retard the phase because of those plates. Okay. Now again the question arises, we have two components, ordinary and extraordinary. How to remove one of these two components in order to get plane polarized light at the output? तो मैं सिंपल ये डायग्राम बनाता हूँ। तो आपके पास सपोज ये क्रिस्टल है, ठीक है, ये आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट इज फॉलिंग ऑन दिस क्रिस्टल। ठीक है, सो ड्यू टू डबल रिफ्लेक्शन it splits the light into two components, extraordinary ray and dots we have ordinary ray. ठीक है, both are plane polarized light because they have vibration only along one plane. How we can remove one of these two components? So first method is dichroism. Dichroism. So it is the property of certain crystals. या पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर वाइब्रेशन हो रही है तो उसको ऑब्जॉर्ब कर लेगी और बाकी को पास कर देगी. सो डायक्रोइज्म is a property of certain materials. This is property of certain materials to absorb light of light with electric oscillations, E oscillations along certain directions. Property of absorption of light along certain direction. ठीक है जी, and easily transmit along its perpendicular direction. So this is the dichroism property of certain crystals. So naturally occurring materials like example वो क्या लिखा है सर, property of absorption of light, E component आप ऐसा भी लिख सकते हो. सर ये ठीक क्या है, along its along certain direction and transmit along its perpendicular direction. ठीक है, सो अगर जिस डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल एक्स डायरेक्शन की उसने सारी वाइब्रेशन अब्सॉर्ब कर ली तो वो वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन में इजीली ट्रांसमिट कर देगी लाइट को. ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल इज टूरमेलिन क्रिस्टल. ठीक है, दिस इज नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल, मैन मेड नहीं है, which can show this kind of property. ठीक है जी, एंड सो अगर आपके पास इस तरह का कोई मटेरियल है, ठीक है, और अगर आप यहां वो मटेरियल रख देते हो, फॉर एग्जांपल डाइक्रोइक मटेरियल यहां अगर आप प्लेस कर देते हो तो क्या होगा, टूरमेलिन क्रिस्टल आप कैल्साइट क्रिस्टल के आउटपुट पे रख देते हो. कैल्साइट क्रिस्टल शोज डबल रिफ्लेक्शन, टूरमेलिन क्रिस्टल शोज absorption of light along a particular direction and it can easily transmit the E component along its perpendicular direction. ठीक है, तो अब क्या होगा, सर सिर्फ ओ रे पास करेगी. सो मैं ये सेपरेट डायग्राम बना देता हूं मुझे. सो ये आपके पास दो लाइट्स हैं, अनपोलराइज्ड लाइट भी आप इसको बोल सकते हो बिकॉज इट हैज बोथ कंपोनेंट. सो अगर ये किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल में से पास कर रही है तो हो सकता है इसमें से इन दोनों में से एक लाइट से आइदर वन ऑफ द लाइट से अगर ये अब्सॉर्ब हो गई एरोज वाली तो ये वाली पास कर जाएगी.
ठीक है। तो ये जो आपको मैंने बुक बताई है बच्चे अजय घटक की, उसमें आपको मोर क्लियर डायग्राम है, उसमें ईच कंपोनेंट कैसे ऑब्जर्व हो रहे हैं वो आपको बताया गया। सो कॉन्सेप्ट यही है। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। So either this one or the arrow one you can get because of the property of that crystal, tourmaline crystal या dichroic crystal, ठीक है जी। अच्छा, dichroic का डिक्शनरी मीनिंग क्या होगा? What is meant by dichroism? नाम से क्लियर है बच्चे, it is mixture of two words, di and croism. Di means double and croism is related to the color, so double color, ठीक है जी। अच्छा, ये एक हो गया मुझे इसमें कि आपने यूजिंग डाइक्रोइक क्रिस्टल एक कंपोनेंट रिमूव कर दिया और आपके पास दूसरा कंपोनेंट आ गया। सेकंड मेथड इज नाइकोल प्रिज्म। इसमें क्या है, वी हैव ए कैल्साइट क्रिस्टल, इस फॉर्म में। इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग वगैरह नहीं है बच्चा आपके सिलेबस में, बट ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग है ये है क्या चीज। सो दिस इज ए कैल्साइट क्रिस्टल, ठीक है, विद सर्टेन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड इन बिटवीन अलोंग डायगोनल इसको कट कर दिया हमने। सो दो पीसेस हो गए एंड वी हैव सैंडविच्ड in these two pieces another kind of material which is called Canada balsam material. Chemical name Canada balsam. ठीक है जी। Now if unpolarized light, तो ये क्या है सर, कनाडा बॉल्सम? बच्चे केमिकल नेम है। so ये अभी मैं बताता हूँ कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमने यूज क्यों किया। You have unpolarized light falling on calcite crystal and Canada balsam is sandwiched between the two pieces of calcite cutted along the diagonal, ठीक है। अब क्या होगा बच्चे, इस पॉइंट पे क्या होगा, ए पॉइंट पे सर वो डिवाइड हो जाएगी। सो इट इज डिवाइडेड। सो मैं फॉर एग्जांपल ये बना देता हूं और एक्स ऑर्डिनरी रे को इस फॉर्म में लिख देता हूं। जस्ट अ मिनट। सो यहां से ये जो कंपोनेंट्स हैं, सो ये ऑर्डिनरी रे है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ठीक है जी। नाउ वी हैव two different refractive index for ordinary extraordinary ray, mu of E and mu of O, ठीक है जी। क्लियर है जी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैल्साइट क्रिस्टल का कुछ भी हो, बट बिकॉज ऑफ डबल रिफ्रैक्शन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी रे दे आर फीलिंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दे आर फेसिंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हाइल ट्रैवलिंग थ्रू दिस कैल्साइट क्रिस्टल। Now we have chosen a particular material, especially this one, Canada balsam. कोई और material भी ले सकते थे। We have chosen this one because its refractive index mu of Canada balsam lies in between refractive index of these two. So अगर मैं ये नंबर लिखूं मुझे 1.486 for extraordinary ray and 1.658 for ordinary ray and Canada balsam है 1.55, ठीक है जी। अब यहाँ से आउटपुट में जो सर लाइट आपने आएगी, तो कहा था ये म्यू सर अलग अलग वेवलेंथ पे वो डिपेंड करता है अलग, मतलब हाँ बच्चे पर ये पर्टिकुलर में एग्जांपल लिखिए आपको, ये नंबर फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो अगर ये लाइट आपकी आउटपुट में बाहर आ गई, नाइकोल प्रिज्म में ऐसा ही होता है। सो ये जो कंपोनेंट है ऑर्डिनरी रे का, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इसमें से बाहर आ गई। ये जो ऑर्डिनरी रे का कंपोनेंट है इसको अगर हमने रिमूव करना है,
आउटपुट से, तो क्या करेंगे? विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कैसे यूज करेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है? कि सर वो अंदर ही मतलब रिफ्लेक्ट होती रहती है। ये तो यहाँ मतलब से यहाँ इस मटेरियल से वो रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है? तो आपके आउटपुट पे ऑर्डिनरी रे खत्म हो गई। वो रिफ्लेक्ट कब होगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सर आई जब आई सी से ग्रेटर हो। हाँ, आईसी से ग्रेटर होगा एंगल, क्रिटिकल एंगल से, बट sin 90 इज इक्वल टू 1/μc। यस। सो यहाँ देखो मुझे, म्यू ऑफ ऑर्डिनरी रे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इस वेव के लिए 1.658, और ये जो है 1.55, इसका 1.55 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका है 1.658। तो ये एक तो ये कंडीशन हो गई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया जिस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, और जहां से रिफ्लेक्ट करना है वो कम हो गया, ठीक है? और ये एंगल, क्रिटिकल एंगल कितना होगा इसका? इट इज 69 डिग्रीज। सो ये जो एंगल है ना, दिस वन 69 डिग्रीज। सो अगर ये आप एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे अगर आप रिफ्लेक्ट करवा देते हो, दिस लाइट ऑर्डिनरी रे विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड बैक। सो आपके पास आउटपुट पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट आया, ठीक है? क्लियर है बच्चे? और इसकी डायमेंशन का कैसे होगा? इफ दिस इज एल, लेंथ एल है अगर इसकी हाइट, तो इसकी विड्थ ये जो है 3 टाइम्स एल होगी। तो आपको इसकी कंस्ट्रक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द ऑर्डिनरी रे कंपोनेंट इज रिफ्लेक्टेड बैक, whereas extraordinary ray is easily passing through the crystal, combination of calcite plus Canada balsam. Clear है जी? Yes, sir. Yes, sir. So ये आपका बजे पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन हो गया। एक और है बजे आपके पास पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। सो इसमें पोलराइजेशन में लास्ट है हमारे पास पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। सो हमने डिफरेंट मेथड किए, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन using Polaroid, polarization using wire grid polarizer, polarization using double refraction, and last one is polarization using scattering. ये simplest method है scattering का, polarization का, ठीक है जी? So suppose you have unpolarized light, ठीक है, falling along this direction, and you have this plane, and atom is placed at this point O, ठीक है जी? So अगर मैं इसको x एक्सिस बोल दूं x, और इसको मैं बोल दूं y, और इसको मैं इस तरह से ये दो कंपोनेंट इस तरह बना दूं, one is parallel to y axis, another one is parallel to x axis. So we have unpolarized light, we have polarized it in along x axis and y axis. So when unpolarized light falls on this atom, तो क्या होगा बच्चे? What will happen if a certain atom is placed on this point? अब बाय स्कैटरिंग है, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, तो स्कैटरिंग का मतलब क्या है? इसके ऊपर फॉल करेगी और किसी डिफरेंट एंगल पे स्कैटर हो जाएगी लाइट। सो एटम पे फॉल करने पे अनपोलराइज्ड लाइट, इट गॉट स्कैटर्ड अलोंग द टू डायरेक्शंस, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, ठीक है जी? सो एक्स डायरेक्शन में ये वाले जो कंपोनेंट होंगे ये आएंगे, और जो वाई डायरेक्शन में है, वाई में होंगे आपके पास ये वाले कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाले। So it कहने का मतलब है कि if you are looking along x-axis, you are getting component like this. Another one is along the axis, longitudinal हो जाएगा, so वो आपको visible नहीं होगा. And along, if you are looking along y-axis, eyepiece यहाँ रखा है, so you are getting one component only, ठीक है? Another one is along this, which is not visible. So इसमें हो क्या रहा है? If unpolarized light is allowed to fall on a gas atom, then the beam scatters at 90 degree. So either 90 degree में ये होगा, either this one or this one, to the incident beam
and is linearly polarized. So ये जो अब light है आपके पास, ये linearly polarized या plane polarized lights है. ठीक है जी, ये simplest है. सर इसमें दोनों पोलराइज हो जाएंगे. दोनों पोलराइज हो जाएंगे. डिपेंड कर रहा है कि आप किस डायरेक्शन में देख रहे हो. ठीक है जी. So this is the simplest. सर हाँ जी. ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, या ये फिक्स्ड होता है? बच्चे अभी मैंने क्या बोला कि 90 डिग्रीज के एंगल पे लाइट स्कैटर हो जाएगी. सो अगर एक्स कंपोनेंट इस पे फॉल कर रहा है, एक्स कंपोनेंट क्या है, ये वाला. ठीक है. एंड इफ एक्स कंपोनेंट इज फॉलिंग ऑन दिस एटम, तो लाइट कहां इमिट होगी? अब परपेंडिकुलर ना 90 के एंगल पे लाइट 90 स्कैटर हो जाएगी. सो एक्स की बजाय अब वो वाई के अलोंग, ये मैंने थोड़ा टेढ़ा बना दिया, ये वाई के अलोंग इमिट होगी. ठीक है, 90 के एंगल पे. और अगर वाई वाला जो एंगल है, सपोज ये वाई एक्सिस है हमारी इस डायरेक्शन में, सो वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है हमारे पास, इफ दिस इज फॉलिंग ऑन एटम, तो अब लाइट कहां इमिट होगी? इसके परपेंडिकुलर, यानी कि इस डायरेक्शन में. ठीक है जी. ओके. So in these slides, more details about Nicol prism is given, but you have to look for the brief introduction of Nicol prism only. And last one we have Malus law. Any idea about Malus law? सर इसमें हम सर I पोलराइज is equals to I naught cos square phi. Yes. So it is the famous formula which we are using all the time. Cos square phi. यस सर. So what is I naught? मैक्सिमम इंटेंसिटी. Maximum initial incident intensity. What is maximum intensity? इंसिडेंट. Incident intensity. So the intensity which we get after passing it through first P1. polarizer. Yes, sir. Consider After this diagram. We have one polarized light. It is passing through the polarized P1, and we are getting. इसको मैं resolve कर देता हूँ दो ही components में इस तरह से. So we are getting one component only parallel to the transmission axis. ठीक है. Now, if we place another polarized, है ना, polarizer या analyzer. So if this is, you can say polarizer, and this is analyzer, and rotate its transmission axis along a particular direction, such that angle between the incident plane of vibration, direction of vibration of light and transmission axis is theta. If this angle is theta, normal के साथ transmission axis का angle theta आपने लिख दिया, तो आपकी light जो है अब जो output में आएगी, ये एक तो ये इस डायरेक्शन में नहीं होगी जो आपकी पोलराइज्ड लाइट थी. ठीक है, बिकॉज यू हैव ओरिएंटेड द ट्रांसमिशन एक्सिस. सो reduced intensity will come out of the analyzer at that particular angle theta. So ये अब थीटा एंगल पे ही होगी. ये जो अगर आप यहाँ से इसको ड्रॉ करो नॉर्मल, ये एंगल थीटा ही होगा. ठीक है. सो I naught is the intensity here. ठीक है, एनालाइजर पे पढ़ने से पहले जो इंटेंसिटी है, थीटा is the angle between the direction of vibration and transmission axis. ठीक है. So जो कंपोनेंट बाहर आ रहा है that is given by I naught cos square theta. ठीक है. At output, if you rotate this analyzer over a complete cycle, you will get maximum intensity 2 times. I naught आपके पास 2 बार आएगा. 0 डिग्री 180 डिग्री. Yes. ठीक है जी. So this is Malus law. सर So हाँ जी. सर एक चीज होती है ना कि सर जब हम अनपोलराइज्ड लाइट डालते हैं, सपोज उसकी इंटेंसिटी आई है, तो सर जब वो पोलराइजर से पास होती है तो सर वो I/2 हो जाती है. हाँ, हो जाएगी. क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया था, देखो ये आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट थी, मैंने इसको रिजॉल्व किया 2 कंपोनेंट्स में, इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन. सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन 50% फॉर एग्जांपल, और पैरेलल टू द प्लेन 50%. और अगर आउटपुट में आपके पास ये वाली जो है सिर्फ यही कंपोनेंट है, सो आपके पास तो ऑलरेडी 50% ही रह गया है. 50% इज I0/2. ओके. सो आप ऑलरेडी कंपोनेंट कट कर रहे हो, सो इंटेंसिटी विल कम डाउन.
ओके। ठीक है जी। तो आई नोट से फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद मतलब वो फर्स्ट पोलराइजर के बाद है कि फर्स्ट ये पहले आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चे। आपका एक्सपेरिमेंट इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है या इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपको गिवन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो पॉइंट नंबर 1 से, तो ये आई नॉट बाय 2 होगा, अगर ये यहाँ आई नॉट है। बट अगर आप स्टार्ट ही यहां से कर रहे हो पॉइंट नंबर 2 से, तो आप रेफरेंस तो आपका आई नॉट ही होता है ना। यस सर। आप मैक्सिमम इंटेंसिटी को आई नॉट बोलते हो बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सो ये ऑलरेडी बच्चे वो कंपोनेंट ही एक्सप्लेन किए हुए हैं कि ई एक्स और ई वाई कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक जो हमारे कंपोनेंट है वो कैसे रिजॉल्व किए हैं, ई नॉट साइन कॉस थीटा कैसे आया। ठीक है, सो यहाँ ये जो एंगल है थीटा, सो अगर आप ट्रांसमिशन एक्सिस के अलोंग ई वेक्टर को रिजॉल्व करो, यू विल गेट ई कॉस थीटा। ठीक है, ई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस थीटा, और आपको इंटेंसिटी चाहिए तो स्क्वायर करोगे दोनों तरफ, सो यू विल गेट आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये कंपोनेंट रिजॉल्व किए हैं बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है जी, क्लियर है बच्चे, ई कॉस थीटा। Yes, sir. Now we have two applications, I think, of Polaroids: anti-glare automobile headlights. So आप लोगों ने कभी व्हीकल को ड्राइव किया होगा, so जो ग्लेयर है अगर नाइट में आप ड्राइव कर रहे हो, तो सामने से अगर हेडलाइट ऑन है किसी की, so ग्लेयर पड़ती है। So how to reduce that glare? So ये एक सीन क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, टू अप्रोचिंग व्हीकल, सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, उसकी ये हेडलाइट है। ठीक है, एंड आप इस तरफ से इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ये इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंड दिस इज विंड स्क्रीन। ठीक है, सामने से अगर सीधी हेडलाइट हाई बीम पे पड़ेगी, सो आपको दिखना बंद हो जाएगा, सो विजिबिलिटी विल कम डाउन। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ग्लेयर, ऑटोमोबाइल हेडलाइट्स में हम क्या चेंजेस करें? अभी आपने लाइट से प्ले किया है कि आप उसका एक कंपोनेंट कम कर सकते हो या रिफ्लेक्शन कम कर सकते हो, है ना। सो व्हाट शुड वी डू इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ग्लेयर? ये देखो, अब इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है वो इस डायरेक्शन में, ये जो है, ठीक है, और इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर। द ट्रांसमिशन एक्सिस और पास एक्सिस, जहां से लाइट पास कर रही है, दिस शोन बाय हेडलाइट एंड in headlight and windscreen, they are perpendicular to each other. So पहली condition, the transmission axis of the two vehicle, they should be at perpendicular to each other. ठीक है, अब perpendicular होगी तो क्या होगा बच्चे? एंगल अगर 90 डिग्री कट होगा, हो जाएगी सर, जीरो हो जाएगी। so I is equal to I naught cos square theta, if theta is equal to 90 डिग्री, ग्लेयर जो है जीरो आ जाएगी। ठीक है, अगर आप ये पिक्चर रिवर्स करना चाहो, अगर ये व्हीकल इस डायरेक्शन में आ जाए या ये हेडलाइट यहाँ आ जाए, तब भी आपका जो एंगल है, म्यूचुअल एंगल बिटवीन द टू ट्रांसमिशन एक्सिस विल रिमेन 90 डिग्री। सो दैट इज हाउ यू कैन रिड्यूस द ग्लेयर इफ यू आर using the material or pasting the film or using the crystal light or glass which are having transmission axis, mutual transmission axis at 90 degree। और mutual transmission axis 90 degree है, तो it means individual का कितना होना चाहिए? 45 degrees। so आपकी transmission axis विंड स्क्रीन की या हेडलाइट्स की, they should be at 45 degrees to the normal। ठीक है, ग्लेयर रिड्यूस करने के लिए। सेकंड वन इज टिंटेड ग्लासेस, एडजस्टेबल ग्लासेस। ये क्या होता है मुझे? एनी एग्जांपल ऑफ टिंटेड ग्लासेस? जैसे बच्चे प्लेन्स में भी होता है और होटल्स की विंडो पैन्स में भी होता है कि टू पोलराइड्स आर प्लेस्ड ऑन वन ओवर द अदर, ट्रांसमिशन एक्सिस पैरेलल होती हैं दोनों की। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये एक विंडो पैन ग्लास बना दूं और अगर मैं इसी के ऊपर दूसरा पोलराइड प्लेस कर दूं पैरेलल, ये आपको दिखाने के लिए सेपरेट कर रहा हूं, अदरवाइज दे आर वन ओवर द अदर। ठीक है जी, सच दैट देयर ट्रांसमिशन एक्सिस, पहले वाले की और दूसरे वाले की ट्रांसमिशन एक्सिस, दे आर पैरेलल। सो जब पैरेलल है, इट मींस म्यूचुअल एंगल इज 0 डिग्री, सो यू विल गेट मैक्सिमम इंटेंसिटी। सो ये आपके पास यहाँ शो किया गया, मैक्सिमम इंटेंसिटी। एक पोलराइड से दूसरे पोलराइड के बीच में से जो लाइट पास कर रही है, यू विल गेट मैक्सिमम सनलाइट फॉर एग्जांपल। ठीक है, बट
जैसे बोइंग प्लेन में होता है कि आप विंडो पैन को ऊपर से बटन प्रेस करो, सो वो अपना कलर चेंज कर लेता है विंडो, ठीक है, जो लाइट आ रही है वो अपना कलर चेंज कर लेती है। वो कलर कैसे चेंज करती है? बिकॉज यू आर tilted or you are tilting the second pole right as compared to the first one। जैसे ये एग्जांपल, अगर ये आपने फिक्स रखा और इस वाले को आप ये जैसे यहाँ पे ना रोटेट करना शुरू, बटन प्रेस किया तो वो थोड़ा सा टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा। सो टेढ़ा होते ही उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, जो ग्लेयर है इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी बाय I इज इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और थर्ड सिचुएशन में आपने क्या किया, फर्स्ट को तो फिक्स ही रखा, सेकंड वाला जो पोलराइड है इसको बिल्कुल इसके 90 के पे ऊपर रख दिया। अगर ये इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है, सो इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस आपने इस डायरेक्शन में रख दी। अब आपके पास जीरो इंटेंसिटी है। सो आप जब बटन प्रेस करते हो विंडो के, तो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे आपको बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन दिखती है विंडो पे। सो दैट इज द केस नंबर 3, ठीक है जी। सो दैट इज हाउ वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ टू पोलराइड्स in order to get maximum or minimum intensity or zero intensity. Clear है बच्चे? So this was all about the polarization. But if you have any doubt, you can ask now. The topic of polarization is over. Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे। Sir, can you show the Nicole prism slide, the one you explained through the diagram? Just a minute, I will show you precise diagram. Just a minute. Yes, so what is the question? No, sir, I just wanted to have a look at the diagram. Just one. But, I wanted to. So any one of you didn't ask one question, simple question, कि जब भी मैं क्रिस्टल बना रहा था तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना रहा था, ठीक है, और यहाँ जब कैल्साइट बनाया तो आई हैव ग्राइंडेड दी सरफेसेस, ये टिल्टेड फॉर्म में है। सो ऐसा क्यों किया मैंने? सर परपेंडिकुलर में वो सीधी पास आउट हो जाएगी, Yes. मतलब कोई डिफेक्ट। यस, सो इन ऑर्डर टू गेट दिस एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, ये जो है एंगल ग्रेटर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आई हैव ग्राइंडेड दीज सरफेसेस। सो इंस्टेड ऑफ 90 एंगल, अब ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया और ये एक्यूट एंगल हो गया, 90 से कम हो गया और ये 90 से ज्यादा हो गया। सिमिलरली इस तरफ भी, ठीक है। सो सिंपली आपने कैल्साइट क्रिस्टल को, ये सिंपली अगर कैल्साइट क्रिस्टल है, इसको बीच में से काट दिया आपने अलोंग द डायगोनल, इसमें फिर मटेरियल फिल कर दिया कैनेडा बाल्सम, ठीक है। सो दिस इज कैनेडा बाल्सम मटेरियल, एंड इन ऑर्डर टू गेट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन टू बी वैलिड फॉर ऑर्डिनरी रे, आपने ये जो फेसेस हैं, ये फेस 1 है और ये फेस 2 है, इनको आपने ग्राइंड कर दिया। सो इतना काट दिया आपने यहां से भी, तो टिल्टेड कर दिया, ठीक है जी। क्लियर है बच्चे? थर्ड मेथड एक बार कौन सा पढ़ाया था, फिर बता देंगे क्या? मुझे मैं रिवाइंड करता हूँ मुझे कि हमने किया क्या है। सो वी हैव स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ पोलराइजेशन एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ लाइट एमिट्स फ्रॉम एटम फ्रॉम ए मॉलिक्यूल बाय डी एक्साइटिंग फ्रॉम एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है। फिर हमने कोहेरेंस की बात की, उसके बाद हमने देखा अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ट्रांसमिशन एक्सिस क्या होती है, ठीक है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है। देन our syllabus is restricted to plane polarized light, so we have to find how we can produce plane polarized light from unpolarized light, okay. So there are few methods available. So first one we did is wire grid polarizer, for valid for higher wavelengths, microwave and above. Second one we have done in order to make wire grid polarizer combination valid for lower wavelengths as well, we replace copper wire with the iodine molecule atoms, so that is polaroid, ठीक है। थर्ड वन इज वी हैव डन विद पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। सो एक रिफ्लेक्शन हुआ
जिसमें हमें ब्रेवेस्टर लॉ था, सो ब्रेवेस्टर आईपी एंगल ऑफ पोलराइजेशन, तो वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने प्रूव किया कि आईपी प्लस आई थीटा आई प्लस थीटा आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। सो इन केस ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ब्रेवेस्टर लॉ से यूजिंग ब्रेवेस्टर लॉ एंड स्नेल्स लॉ, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट दे आर एट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। देन वी हैव मूव ऑन टू डबल रिफ्रैक्शन। सो डबल रिफ्रैक्शन होती है, कैल्साइट क्रिस्टल की क्या प्रॉपर्टी है? So it breaks light into two components, ordinary and extraordinary. Ordinary light follows Snell's law, extraordinary light do not follow Snell's law. Ordinary light has same velocity in all the directions. Extraordinary light do not have same velocity in different directions. So it is theta dependent, angle dependent velocity. Okay? So once unpolarized light is broken into two components, divided into two components, both the components are plane polarized light. So we can get in the output the plane either of the two components of plane polarized light by removing one component. So हमने इसमें दो मेथड किए थे। First one is dichroic crystal, tourmaline crystal आप यूज करो और एक कंपोनेंट रिमूव कर दो, ठीक है। दूसरा आपका मेथड था नाइकोल प्रिज्म। सो आप यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आप एक कंपोनेंट रिमूव कर दो, से ऑर्डिनरी रे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे आपके पास बाहर आ जाएगी, ठीक है। फोर्थ मेथड इज पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। सो आप स्कैटरिंग से फिफ्थ मेथड इज बाय स्कैटरिंग। सो अगर गैस एटम के ऊपर आप अनपोलराइज्ड लाइट फॉल करते हो, सो एटम जो है री एमिट करेगा लाइट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, ओनली इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और जो दूसरी डायरेक्शन वाला है वो ऑब्जॉर्ब कर जाएगा, ठीक है। सो आप एक्स के अलोंग देखोगे तो आपको वाई के अलोंग वाइब्रेशन दिखेगी, और अगर आप वाई एक्सिस के अलोंग आईपीस रख के देखोगे तो आपको एक्स के अलोंग वाइब्रेशन दिखेगी, ठीक है जी। एंड लास्ट वी हैव डन मेलस लॉ। So I is equal to I naught cos square theta. आया कैसे? Because your E vector is projected along the transmission axis. So E component is E naught cos theta. In order to get the intensity, you have to square the amplitude. So E square is equal to E naught square cos theta. So simply I is equal to I naught cos square theta. Then we have done the applications. Applications in headlight, automobile headlight, and tinted glasses. ठीक है? हाँ जी। सर क्विज के लिए सर हम कहाँ से प्रिपेयर करें, क्योंकि सर क्विज सर काफी अलग सी आती है, मतलब बहुत सर क्वेश्चंस काफी डीप में होते हैं। सर मतलब बहुत प्रॉब्लम आती है सर, मतलब 10 मिनट्स में सर उन क्वेश्चंस को सर सोचना ही बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है सर। बताइए, अब ये जो है ना, आप डिफिकल्ट है तो आपके लिए, सभी के लिए डिफिकल्ट है ये। सो ये बनाया इसलिए गया क्योंकि पिछले सेमेस्टर में देखा गया था कि